Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. Please dial 011 before dialing on these numbers. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद वैभव। नमस्कार। घड़ी ने इशारा कर दिया है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का और आप सभी श्रोताओं का हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 डायल करना ना भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। Absolutely, Sparsh. First, the headlines. PM flags off 6 Vande Bharat trains in eastern India, says expansion of rail connectivity will strengthen regional economy. Growing optimism around the potential interest rate cut in the US, FPI infuses 27,856 crores in domestic equities. And looking ahead to US Federal Reserve's two-day policy meeting, Brent crude settles 0.5% down at $71.61 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत में 6 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, रेल संपर्क के विस्तार से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती के चलते विदेशी निवेशकों ने घरेलू इक्विटी में किया 27,856 करोड़ रुपए का निवेश। और फेडरल रिजर्व की 2 दिवसीय नीतिगत बैठक से पहले ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.5% घटकर $71.61 प्रति बैरल पर रही। And before we move on with the show, first the headline story. Prime Minister Narendra Modi today flagged off 6 Vande Bharat trains, including Tata Nagar Patna, through video conferencing from Ranchi Airport. The flag-off event of 6 Vande Bharat trains was scheduled in Jamshedpur. He also laid the foundation stone and dedicated various railway projects of Jharkhand worth more than 660 crore rupees to the nation. The Prime Minister said that today every city and every state wants a Vande Bharat train to boost connectivity. He recalled flagging off 3 new Vande Bharat trains for the states in the north and south of India a few days ago and mentioned flagging off 6 new Vande Bharat trains today which have already begun their journey. Prime Minister Modi underscored that the expansion of rail connectivity in eastern India will strengthen the economy of the region and hugely benefit businesses, professionals and students. Speaking about the boost in cultural activities as a result of the 6 new Vande Bharat trains, the Prime Minister mentioned that a large number of pilgrims who visit Kashi from India and the world would now get a chance to visit Baba Baidyanath in Deoghar with the introduction of Varanasi-Deoghar Vande Bharat. He said that it would boost tourism in the region and also encourage the industrial development of Tata Nagar, thereby creating new employment opportunities for the youth. And we'll be discussing more with Sneha ji on this story and many more. Let's continue the story that we were talking about. The Prime Minister also mentioned laying the foundation stone for Madhupur bypass line in Deoghar district, which will facilitate in avoiding detention of trains in Howrah-Delhi main line and will also help in reducing travel time between Giridih and Jasidi. He also touched upon Hazaribagh town coaching depot in Hazaribagh district, which will help in facilitating the maintenance of coaching
stocks at this station. He said the doubling of Kurkura-Kanarao line will boost rail connectivity in Jharkhand and strengthen connectivity to the steel industries. जी, और खबर पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं योगेश। योगेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। सवाल पूछिए अपना। आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेराई एसेट का एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसका नाम हुआ बाद में, उस पर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका परफॉर्मेंस खराब होता चला गया और अभी इसको 2 स्टार रेटिंग हो चुका है वैल्यू रिसर्च से। तो इन पे क्या अभी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, कब तक इसको निकाल देना चाहिए? जी, तो योगेश जी, जैसे आपने बोला, मिराई एसेट एज एन एएमसी एक्चुअली हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, बट जब भी हमारी उनके फंड मैनेजर्स से चर्चा होती है, वो काफी क्लियरली बताते हैं दैट there is nothing really wrong with their investment framework, neither with the quality of their underlying portfolio, the securities that they are investing in. But जहां पे वो accept करते हैं कि उनसे थोड़ा सा वो पीछे रह गए हैं उन stocks में invest करने से जिनकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई है during this time. एंड वो भी उनका एक प्रेमाइस पे बिल्ड है कि जो टाइप का फ्रेमवर्क वो फॉलो करते हैं, दे आर नॉट रियली इनटू चेजिंग परफॉर्मेंस और चेजिंग द सेक्टर्स विच आर डूइंग गुड जस्ट बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस उन सेक्टर्स की अच्छी है। वो उनके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट होते हैं या नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग उनको अपने पोर्टफोलियोज में एंट्री देते हैं। बट अभी हाल फिलहाल के टाइम में उन्होंने काफी ज्यादा 10 to 15% ऑफ देयर पोर्टफोलियो में चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उनकी जो नियर टर्म की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत बेटर हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम दे आर फ्लाइंग ऑफ, बट ये फंड्स और ये एएमसी 15 साल से इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रिटर्न बनाती आई है। सो दे हैव बिल्ड दैट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन देयर इक्विटी फ्रेमवर्क, जिस वजह से 15 साल वो इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ जनरेट करवा पाए। तो मैं आपको बोलूंगी आप थोड़े टाइम इनके साथ बने रहिए। आप इसके अलावा ये कर सकते हैं कि आप इसी के जैसे और फंड्स में साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ इट यू हैव सम सरप्लस और उसको आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप फंड है। ये सारे फंड्स काफी डाइवर्सिफाइड इक्विटी वाले बकेट में आ जाते हैं, तो ये कोर इक्विटी पोर्टफोलियो जो होता है एक इन्वेस्टर के लिए, उसके लिए सूटेबल रहते हैं। Let me repeat the phone numbers on which our dear callers can call us at the Market Mantra phone lines. These are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. All the callers from outside of Delhi should put 011 before dialing in the numbers. And we have Tarun Bansal ji from Mathura. Tarun ji, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग, मेरा नाम तरुण बंसल है जी। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये कुछ एक अच्छे फंड बता दीजिए इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी में। दूसरा ये कि प्रोसीजर क्या होता है विड्रॉ करने का म्यूचुअल फंड से। तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे जी। तो जहां अभी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो मैं ये मान लेती हूँ कि आप एक नए इन्वेस्टर हैं। अब क्योंकि आप एक नए इन्वेस्टर है, तो जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी होती है जो 75% पैसा इक्विटी में डालते हैं और 25 से 30% डेट में डालती है, वो एक शुरुआती निवेशक के लिए सही रहती है, क्योंकि उसमें डेट एसेट क्लास की स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो इक्विटी के उतार चढ़ाव थोड़े कम भारी लगते हैं। अब इस कैटेगरी में अगर मैं आपको 2 फंड्स बताऊं तो वो आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड हो जाएगा, और आप डीएसपी का इक्विटी एंड बॉन्ड फंड भी देख सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल था कि जब रिडीम करना होता है तो कैसे करें, तो एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, वहां पे जैसे आपको इन्वेस्ट का एक बटन मिल जाता है, वहीं पे आपको रिडीम का भी एक बटन मिल जाता है। आप बस मैं इतना कहना चाहूंगी, जब आप रिडीम कर रहे हो तो आई होप वो आपके गोल अचीव हो गया हो, इसके लिए आप कर रहे हो, रादर देन कि आपका पैसा एक लेवल तक पहुंच गया और आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जी। और दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये हमारे फादर सीनियर सिटीजन हुए हैं, तो उसके लिए हमें ये बताइए कि उनके पास अमाउंट है कुछ म्यूचुअल फंड के एफडी की मेच्योरिटी के बाद फिर, तो म्यूचुअल फंड के लिए हमें ब्रांच में जाते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती, अगर वहाँ कुछ मिलती है तो अधूरी मिलती है।
ऐसा कोई संस्था है जहाँ ये जाके आदमी वहाँ थोड़ी सी ट्रेनिंग में भी आ जाएगा और समझ भी जाएगा, वहाँ जाके जानकारी मिल पाएगी? तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा शुरू में बता पाएंगे म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे कितना कितना अमाउंट मिनिमम से मिनिमम कितना लगा सकते हैं, और इसके अलावा वो कुछ मैच्योरिटी के बाद जो पेमेंट आई है और कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं? जी, तो जहां तक मैं समझ पाई हूँ, आप ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप खरीदने जाते हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं? जी, स्नेहा जी, वो उनका कहना ये है कि वो सीनियर सिटीजन है और उनके पास कुछ अमाउंट है जो एफडी में उनका मैच्योर हो गया है, तो जानना चाह रहे हैं कहाँ लगाएं, और बैंक्स में उनको जो है ज्यादा जानकारी इस पे नहीं मिल पाती, तो आपसे जानकारी चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि अब यह आपका पैसा जो होगा इससे आप एक रेगुलर इनकम डिराइव करना चाह रहे होंगे, ऐसा मैं मान लेती हूँ। तो म्यूचुअल फंड डोमेन में एक कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। वो आपका एक 1/3 पैसा इक्विटी में रखते हैं, 1/3 पैसा डेट में रखते हैं, और कुछ डेरिवेटिव्स यूज करके आपको रिटर्न जनरेट करवाते हैं। तो ये दो कुछ फंड्स भी मैं आपको बता सकती हूँ, एक्सिस इक्विटी सेवर और मिराई एसेट का इक्विटी सेविंग्स, जिन्हें कंसिडर करा जा सकता है। जब आप ऐसे मोड पर आ जाते हैं जहां पर आपके पास आमदनी नहीं आ रही है और आप रेगुलर इनकम डिराइव करना चाहते हैं, तो वहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ये हो जाती है कि आप इक्विटी में कम से कम 1/3 पैसा डाल रहे हो, ताकि आपके जो पैसा मैच्योर होके एफडी से मिला है उसको थोड़ी सी इन्फ्लेशन एडजस्टेड बढ़ोतरी मिलती रहे, और आप सिर्फ अपने जो कॉर्पस है उसी में से ना रेगुलर इनकम निकालते रहें। तो जो ये इक्विटी सेविंग्स टाइप के फंड होते हैं वो आपको ये चीज अच्छे से दे पाते हैं, और इनमें आपको एक्चुअली जब आप इन्वेस्ट करना होता है तो मिनिमम अमाउंट ज्यादा से ज्यादा 500 से 5000 की रेंज में रहता है। इन एनी केस, वैसे भी जो आप पूछना चाह रहे थे कि म्यूचुअल फंड का जो ब्रॉड डोमेन है उसमें कितने से कितना में पैसा लगा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा डिजाइन बन चुका है जहां पे आज की तारीख पे 10 रुपए से भी पैसा लगाना स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसे 2-3 फंड्स हैं, बट मैं आपको ओवरलोड विद इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहूंगी, और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप एक्सिस इक्विटी सेवर और मिराई एसेट इक्विटी सेविंग्स के बारे में पढ़िएगा। आप नॉर्मल ऑनलाइन भी जाकर ये देख सकते हैं, या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड और मिराई एसेट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर भी आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। And we have a next caller from Mumbai. We have Ratnakar ji joining us. Ratnakar, welcome to the show. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Very good evening. हाँ, मेरा सवाल है कि अभी म्यूचुअल फंड से कुछ रिडम्पशन करना है अर्जेंट अमाउंट के लिए, तो कंप्लीट उससे बाहर आना अच्छा रहेगा कि पार्शियली अमाउंट रिडम करना ठीक रहेगा? और दूसरा अमाउंट है, क्वेश्चन है कि वो जो ईएलएसएस फंड है वो 2018 में मैंने चालू किया था, वो भी अभी रखा है, तो उससे कंप्लीट बाहर आना ठीक रहेगा? थैंक यू सर। जी, तो जो आपका पहला सवाल है कि आपको पैसे की जरूरत है और आप वो सारा निकालें या कम निकालें, एक्चुअली वो सब इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। जितना उसमें बन चुका है, अगर आपको आपके गोल के लिए वो सारा ही चाहिए तो फिर आपको सारा ही निकालना सही रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने इन्वेस्ट ही इसलिए करा था कि हमारा जब गोल मीट हो जाए ये हमारी मदद करे उसमें। तो ये मैं आपको बोलूंगी, आप थोड़ा सा हिसाब लगाइएगा कि कितना चाहिए और उसमें कितना है। जहां तक आप ईएलएसएस फंड की बात कर रहे हैं, तो ईएलएसएस फंड में एक्चुअली 3 ईयर का लॉक इन होता है। तो मान लीजिए अगर ये पैसा आपने 2018 से एसआईपी के माध्यम से लगाया था और किसी एक समय तक लगाया था, तो हर उस एसआईपी को 3 साल जब हो जाएंगे तभी वो एलिजिबल होंगे फॉर यू टू रिडीम फ्रॉम दैट फंड। अगर आपने एक साथ लगा दिया था और आज की तारीख में उसको 3 साल हो चुके हैं और वो भी आपको जो आपका गोल मीट हो गया है उसके लिए अमाउंट जो चाहिए उसमें सहायता करता है, तो बिल्कुल आप उससे भी निकालिएगा। जी, और शिमला से हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। सवाल पूछें अपना। जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हमारे हिमाचल में बाग लगे हुए। जी हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे जैसे बागवानी के लिए म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है, तो मुझे इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा और मुझे वो कब तक चुकाना पड़ेगा? या 5 साल की गारंटी या 6 साल की गारंटी? अगर मैं ब्याज कितना है, मुझे ये प्रश्न चाहिए मुझे। राकेश जी, जितना
मैं आपकी बात समझ पाई हूँ। मतलब मैं क्लियरली नहीं समझ पाई हूँ, बट एक चीज जो मैं आपको जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ वो ये जानने में है कि म्यूचुअल फंड गारंटीड प्रोडक्ट्स नहीं है, ये आपको गारंटीड रिटर्न्स नहीं देंगे। वो श्योरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की सर्टेनिटी आपको एफडीज से मिल जाती है। अगर आपका जो मेन गोल है वो है श्योरिटी के साथ रिटर्न्स जनरेट करना, तो म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट आपके लिए शायद सूटेबल नहीं रहेगा। जी, और रुख करते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। भारतीय बाजारों की मजबूती और अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती के चलते विदेशी निवेशकों ने घरेलू इक्विटी में इस महीने के पहले पखवाड़े में 27,856 करोड़ रुपए का निवेश किया। जून महीने से लगातार एफपीआई द्वारा इक्विटी में खरीदारी जारी है। इससे पहले अप्रैल और मई में एफपीआई ने 34,252 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में लगातार 5वें महीने में कमी आई है, जो अगस्त महीने में 43 महीनों के निचले स्तर 2.5% पर पहुंच गई है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में ब्याज दरों में कटौती किए जाने की संभावना है, और इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप शर्मा। दिलीप जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। सवाल पूछिए अपना। जी, जिस प्रकार है ये अपन शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं तो वो उसी समय और उसी क्षण लग जाते हैं और उसी क्षण बिक भी जाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में जो अपन लगाते हैं वो पहले अपने को अलॉट होगा, उसके बाद फिर रिडेम्पशन होगा। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है अलग, तो ये दोनों प्रोसीजर बताएं कृपया सर। जी, तो आपने एक्चुअली खुद ही बता दिया कि शेयर मार्केट में किस हिसाब से आप उसी टाइम का प्राइस आपको एग्जिट और एंट्री के लिए मिल जाता है, और म्यूचुअल फंड्स में आप सही कह रहे हैं, कट ऑफ टाइम होता है जिस प्रोसेस से सबको जाना ही पड़ता है टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन द फंड। वो जब एएमसी को आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है उसके बाद ही आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं। बाकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी म्यूचुअल फंड डोमेन में एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह खरीदारी वहां पे की जाती है। इफ दैट इज समथिंग विच रेजोनेट्स विद यू मोर, तो आप ईटीएफ्स को भी देख सकते हैं, बट ईटीएफ्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी का थोड़ा सा समझ रखनी पड़ती है, तो उसको एक डीपर एनालिसिस चाहिए होता है। बट वैसे म्यूचुअल फंड के कट ऑफ टाइम की वजह से जनरली कुछ ऐसे भारी नुकसान नहीं हो जाता है। आप अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक सूटेबल टाइम मिल जाता है, आप कुछ टाइम के लिए बने रहते हैं, आप रिटर्न्स अक्यूमुलेट कर पाते हैं। एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम फरीदाबाद। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए। नए कस्टमर के लिए ब्रांच में सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में क्या वहाँ विश्वास कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड वहाँ अगर देते हैं तो क्या ऐसा संस्था है कि जो ब्रांच में भी देते हैं बैंकों में और प्राइवेट की हमें कितना विश्वास रखना चाहिए कि वहाँ भी हमें सही, और ऐसी कोई ऑफिस होते हैं आपके म्यूचुअल फंड जाके वहाँ हम म्यूचुअल फंड खरीदें और नई जानकारी वो हमें बताते रहें? इसके बारे में जिनका म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर आप बताते हैं पैसा लगाता है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, हम कैसे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं है, नए जो कस्टमर होते हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आप थोड़ा राय दीजिए। बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, जहां तक सवाल आता है कि आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तो भरोसा एक्चुअली आज तक हम करते आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने इनकम को बढ़ा पाए हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट में शेयर्स की जगह हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो। पहले के टाइम पे तो सिर्फ बैंक्स ही होते थे जिनके थ्रू लोग इन्वेस्ट कर पाते थे। मैं आपको एक सुझाव ये देना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड की एक एसोसिएशन होती है एम्फी, जिनकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे वहां पे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को लोकेट कर पाते हैं। आपको वहां पे अपना एक पिन कोड डालना होता है और आपके साइड मतलब आसपास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में, कौन सा टाइप का फंड अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं सूटेबल रहेगा, वो जानकारी आपको वो दे सकते हैं और वो आपको एक्चुअली हैंड होल्ड कर सकते हैं पूरे प्रोसेस से, आप फंड के चुनाव से लेके फंड में इन्वेस्ट करने तक। फंड मैनेजर्स का ऐसे डायरेक्ट आपके साथ कुछ वो नहीं हो सकता, बट जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आप एम्फी की साइट से जरूर ढूंढिएगा। और बट साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी, आजकल
ऑनलाइन इंटरनेट का वर्ल्ड इतना बड़ा हो गया है कि आप बस इतना भी अगर डाल के उसमें देखेंगे कि जो आपको फंड वो बता रहे हैं उसके बारे में आप 2-3 चीजें खुद भी गवर्न कर सकते हैं बिफोर उसमें इन्वेस्ट करने से पहले, बट एक डिस्ट्रीब्यूटर का साथ आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। जी, और स्नेहा जी आपने AMFI की बात करी है, तो मैं चाहूंगा कि आप श्रोताओं को एक बार क्लियर कर दें किस वेबसाइट पे वो इसको सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, सो आप AMFIindia.com पर जाकर म्यूचुअल फंड लोकेटर करके एक होता है जहां पे आप सर्च कर सकते हैं। जी, और हमारे साथ पुणे से समीर जुड़ चुके हैं। समीर, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, सबको नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, गणपति बप्पा मौर्य। सर, सवाल ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी सवाल पूछा था, लेकिन मैं एक्चुअली फंड के नाम नहीं बता पाया, तो एक्सपर्ट ने थोड़ा सा कंप्लीट जानकारी नहीं दे पाए, तो आज मेरा सेम सवाल है। और सवाल ये है, मेरे पास 3 फंड है सर। कोटक महिंद्रा का ब्लू चिप फंड है, SBI का भी ब्लू चिप फंड है ग्रोथ, और क्वांट का भी स्मॉल कैप फंड है। तो तीनों में एक्चुअली SBI का 44% है, और कोटक का 35% है, और क्वांट का मैंने अभी जोड़ा है जो कि 10% के आसपास है। तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं पैसा अगर लमसम डालूं तो कौन से में डालूं, मैक्सिमम में डालूं या मिनिमम में डालूं? समीर जी, तो आपने फंड के नाम जो बताए और जो आपका प्रश्न है कि मैं मैक्सिमम में डालूं मिनिमम में डालूं, एक्चुअली कहाँ पे कितना रिटर्न मिल गया है उससे गवर्न नहीं करना चाहिए कि आप पैसा कहाँ पे और डालें। अब जो आप स्ट्रैटेजीज जिनमें आप इन्वेस्टेड हो, SBI इन्वेस्टेड है आप, SBI ब्लू चिप और कोटक ब्लू चिप, ये बिल्कुल ही अलग टाइप की स्ट्रैटेजी है फ्रॉम क्वांट स्मॉल कैप। वो छोटी कंपनी में लगाता है, छोटी कंपनी की ग्रोथ में आपको एक उनकी स्टोरी में आपको पार्टिसिपेट करवाता है, बट जहां पे वहां पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे रिस्क भी काफी ज्यादा हाई रहता है। तो और जहां तक दूसरे फंड्स की आपकी बात है, SBI और कोटक, वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, जो थोड़ी स्टेबल कंपनीज होती हैं, वो अपनी ऑलरेडी काफी ग्रोथ देख चुकी होती हैं, तो उनमें जो एक रिस्क रिटर्न का पे ऑफ होता है वो स्मॉल कैप से काफी स्टेबल रहता है। तो जहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, कम रिटर्न मिल रहा है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कब इनमें इन्वेस्ट करा था, कितना टाइम आप रहे हैं, तभी फिर वो रिटर्न आया है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप जो आपका स्मॉल कैप है, आप थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहते हैं, बट आपका रिस्क एपेटाइट भी वो सूट करता है, तो आप बिल्कुल अपने स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। बट स्मॉल कैप में एक ये लिमिट रखनी चाहिए कि आपके इक्विटी पोर्टफोलियो पे बहुत हावी ना हो जाए वो, क्योंकि आज के टाइम जहां पे मतलब बिल्कुल ही राइजिंग मार्केट है, तो ये ग्रीन में जा रहे हैं, बट जब ये गिरते हैं तो ऐसा भी टाइम रह चुका है जब ये 50 से 80% गिर चुके हैं। तो यहाँ पे एक सुलझा हुआ थॉट प्रोसेस चाहिए होता है, सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर पंकज जी फ्रॉम मंडी। पंकज जी, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है, मेरा 5 लाख का लोन खत्म म्यूचुअल फंड से, और मुझे एक गोल्ड लोन सोना खरीदना, तो उसमें मैं कहाँ डालूं इतना ये पैसा? सोना खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंकज जी, ये आज का हमारा शो जो है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो हम चाहेंगे कि आप हमें बाकी दिनों पे कॉल करें। और अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, राजेंद्र। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए। मेरा कुछ म्यूचुअल फंड में होल्डिंग डीमैट में है, इसमें रिडीम कराने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो क्या ये नॉर्मल होल्डिंग में जा सकता है? ये थोड़े दिन पहले मैंने सवाल पूछा था, सब एक्सपर्ट ने कहा था हमें स्टडी करना होगा। जी स्नेहा जी। तो एक्चुअली मुझे पर्सनली इसके बारे में जानकारी उतनी नहीं है कि मैं आपका एकदम से आंसर दे पाऊं, और गलत आंसर मैं देना नहीं चाहूंगी आपको, तो आप अगली बार कॉल करिएगा और आई होप आपको आंसर मिल जाए। हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हर रविवार हम म्यूचुअल फंड्स पे शो करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स की क्वेरीज जो भी हैं हर रविवार आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जान लेते हैं क्रूड का हाल वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव से। And now moving over to our next story, oil prices fell at U.S. Gulf of Mexico. Crude production resumed following Hurricane Francine, and rising data showed a weekly rise in U.S. rig count. As U.S. Gulf Coast production and refining activity resumes, investors have opted to offload oil contracts going into the weekend. Investors are looking ahead now to the U.S. Federal Reserve's two-day policy meeting next week. It is widely expected to cut interest rates on Wednesday. Brent crude futures
settled at $71.61 per barrel, down 0.5%, whereas U.S. West Texas Intermediate Crude WTI settled at $68.65 a barrel, 0.4%. Ma'am, we always encourage our new mutual fund investors or investors in general to call us in Market Mantra and ask questions. A generic query which we usually get about investors investing in mutual funds and changing from one fund to the other is that let's say there is an investor who has invested in a regular fund and he or she wishes to now transfer that same amount moving over into a direct fund. How is it possible? Is it possible or not? And what would be the procedure? Right. So definitely it is possible to switch from any plan or any fund into another one. The point to keep in mind here is the fact that any kind of switch is actually looked at as a redemption from the fund. Let's say XYZ fund regular plan to the XYZ fund's direct plan. Even that would be considered as a redemption. So the taxation aspect of that should be kept in mind. But the fact still remains that the difference between direct and regular plan is the expense ratio. And when you are invested in the regular plan, the expense ratio actually hampers your accumulated returns, leading to a lower return. Even let's say the difference could be around 1 to 2% here. So even if in a regular plan we are getting more units at a discounted NAV, still what the amount would be at the end in a regular and a direct plan would be better in a direct plan. Absolutely. Because at the end of the day what matters is the returns and not really the NAV. जी, और पिछले कुछ सालों से बहुत चलन में आया SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हम ट्रेंड देख रहे हैं SWP का. थोड़ा श्रोताओं को आप इसके बारे में बताएं कि SWP क्या है और किस तरीके से काम करता है. बिल्कुल. तो जैसे नाम में ही समझ आ जाता है कि SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ये आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी फंड में टू बिल्ड अ साइजेबल कॉर्पस, और साथ में आप अपना ये आपकी सैलरी के साथ भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है कि आपको मंथली आ रहा है तो आपका मंथली थोड़ा थोड़ा करके जा भी रहा होता है. SWP में आप विड्रॉ धीरे धीरे कर पाते हैं. ये स्पेशली तब काम आता है जब आपको पता है कि 2 साल के करीब में आपका कोई गोल अचीव होने वाला है, तो आप धीरे धीरे करके अपने फंड में से पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं कि जब तक आपका गोल आए तब तक आपका वो सारा पैसा धीरे धीरे आ जाए. जी, और एक फंड अगर आप बताना चाहें जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, वो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे लिसनर्स को? तो एक्चुअली ऐसा कोई फंड नहीं होता है जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बिकॉज इट एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर्स सर्कमस्टांसेस. आप नए इन्वेस्टर है तो हाइब्रिड फंड को देखिएगा. आप काफी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको थोड़ा टाइम भी हो चुका है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड काफी सही रहते हैं. जी, तो इसी के साथ अंत की ओर हम चलते हैं. और स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी, धन्यवाद. और श्रोताओं, आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं. स्पर्श और वैभव को दीजिए इजाजत. मार्केट मंत्र की टीम कल शाम 6:30 पर फिर होगी आपके साथ. तब तक ख्याल रखें. And before we close, a reminder of the headlines. PM flags off 6 Vande Bharat trains in eastern India, says expansion of rail connectivity will strengthen regional economy. Growing optimism around the potential interest rate cut in the US, FPI infuses 27,856 crores in domestic equities. And looking ahead to US Federal Reserve's 2-day policy meeting, Brent crude settles 0.5% down at $71.61 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.